وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیے۔ کیسا رہا آپ کا اتنا سارا ٹائم جب میں نہیں تھی آپ کے ساتھ؟ آپ نہیں تھی تو ہم نے آپ کو بہت ہی بے قراری کے ساتھ مس کیا۔ جی آپ thank you کی very much۔ بہت ساری ہمیں بیچ میں جو ہے وہ تھرو آؤٹ کالز بھی ریسیو ہوتی رہیں کہ ڈاکٹر ناجیہ کہاں ہیں، بہت ساری ای میلز بھی ہیں آپ کے لیے جو کہ میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں گی، کچھ آپ مجھے بتائیں گی، کچھ ہم آپ کی کالز لیں گے، لیکن آپ نے ہمیں مس کیا کہ بہت زیادہ مس کیا ایکچولی، کام کی وجہ سے، کچھ ٹریولنگ کی وجہ سے میں آ نہیں سک رہی تھی، پھر لاسٹ ویک تھا تو وہ طوفان کا وجہ سے نہیں ہو پایا، تو کچھ اس وجہ سے کافی بزی رہا۔ سنڈے بھی آپ کو پتا ہے، سیٹرڈے ہم 6 دن تو کام کرتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم ٹاؤن میں نہ ہوں یا کسی وجہ سے جانا پڑتا ہے، 6 دن آپ کام کرتی ہیں اور اس کے 7ویں دن آپ یہاں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، بالکل چھٹی کیوں نہیں ملتی؟ چھٹی کیوں نہیں ملتی، یہ بہت بڑا کوشچن ہے، اور جس نے واقعی سبق یاد کیا اس کو واقعی چھٹی نہیں ملتی، اس کو چھٹی نہیں ملتی اور جو یاد کرتا چلا جاتا ہے اس کی چھٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، کہ یہاں تک کہ وہ بہت مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے، لیکن یہ کہ اچھی بات ہے، مصروف زندگی گزارنا فارغ اور ذہن سے بہت بہتر ہے، اور آپ کچھ کریٹیوٹی کرتے رہیں، کچھ پروڈکٹیوٹی ہوتی رہے، آؤٹ آف دیٹ پازیٹیو تھاٹ ہو، تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کام کرتے انسان کو بزی رہنا چاہیے، کریٹیو کام کرنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اپنے اوپر بھی ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہیں تو پھر سب کچھ اچھا ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور اسی لیے ہم لے کر آتے ہیں ہر دفعہ کچھ ڈفرینٹ سے ٹاپکس جو کہ آپ کو ایکچولی جو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے جب آپ کویشچنس کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی کالز نہیں مل پا رہی ہوتی یا جن کی ای میلز ہمیں نہیں آ پا رہی ہوتی، تو وہ پھر میرا دماغ اس وقت چلنا شروع ہو جاتا ہے، ڈاکٹر ناجیہ کا تو ہے ہی بگ برین، تو ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ دیکھیں، آج کے ٹاپک میں اس حساب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ ریسنٹلی جو کیسز میں نے دیکھے میرے او پی ڈیز میں آتے ہوئے، وہ ہے فلیئر اپ فنگس کا۔ ہوتا کیا ہے کہ اس سیزن میں چونکہ بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے، تو ہمارے ہاں ایک کلچر، خیر 2 وجوہات ہیں اس کی، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ صرف ہم لوگوں کو یہ الزام دے دیں، نہانے کا ٹرینڈ کم ہے، صفائی کا ٹرینڈ کم ہے اکثر جگہوں پہ، اکثر جگہوں کا یہ کہ روز ایک دفعہ نہا لیا کافی تھا، اکثر لوگ نہیں نہاتے تو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، نہا لیا، کپڑے وہی ریپیٹ کر لیے، یہاں سے پھر فنگس بہت جو ہے وہ آ جاتا ہے، کیونکہ فنگس کہاں تھے؟ باڈی فولڈز میں، وہ فولڈز جو پسینہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ صاف نہیں ہوتا، تو اس لیے اس چیز کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی باڈی کو صاف رکھیں گے، اور ایسے کپڑے پہنیں، پولیسٹر بیسڈ کپڑے گرمیوں میں نہ پہنیں، کاٹنز پہنیں، لانس پہنے، اور جو موٹے کپڑے اگر آپ نے کسی ٹھیک ہے ویڈنگ پہ گئے کچھ گئے تو فوراً نہا کر آپ نے پہن کے ان کو جانا ہے، اور امیڈیٹلی آ کے ان کو ریموو کریں، اینڈ دین واپس آپ شاور لیں۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شفونز وغیرہ لیڈیز پہن رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو لائننگ ہوتی ہے وہ مکس فیبرک کی ہوتی ہے، اور obviously سیزنل کپڑے تو نہیں بنا پاتے، تو وہ پھر وہ کراس وینٹیلیشن بالکل نہیں ہو پاتا، اور پھر اوپر سے ہمارے یہاں تھوڑا سا پرفیومز لگانے کا ذرا ٹرینڈ کم ہے، تو اس سے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا فینومینن ہے، سوشل بات ہے، جس پہ ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم بات کریں لیکن نہیں کر پاتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو کلین نہیں رکھیں گے، پسینے میں اٹ سیلف کوئی اسمیل نہیں ہوتی، پسینہ جب رکتا ہے، پسینہ ٹھہرتا ہے، اس پہ بیکٹیریا آتا ہے، تب اسمیل آتی ہے۔ تو اگر ہم پسینے کو وہاں رہنے ہی نہ دیں تو نیچرلی اسمیل نہیں آئے گی۔ ڈیوڈرنٹس ہے، رول آنز ہے، پرفیومز ہیں، آپ اگر وہ لگاتے رہیں گے تو یہ ایٹ لیسٹ صفائی آپ کی برقرار رہے گی۔ اور اب تو چھوٹے بچوں کے اتنے اچھے ڈیوڈرنٹس آ رہے ہیں، سب کے آتے ہیں، سب کے کیوٹ ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں، اور اگر آپ یہ چیز کارٹون کیریکٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ، تاکہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا ٹیمپٹیشن ہو کہ ہمیں یوز کرنا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ پہلے سے ان کی یہ عادت رکھیں گے تو وہ آگے جا کے صفائی کا خیال رکھیں گے۔ دوسرا، سر دھونے کا رواج ڈیلی نہیں ہے، آپ نے دھویا، ہفتے میں 3 دفعہ دھو رہے ہیں، وہی سردیوں میں 3 دفعہ دھلتا ہے تو گرمیوں میں بھی 3 دفعہ دھل رہا ہے، تو اس میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ سر دھوئیں، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، ڈیلی سر دھونا ضروری ہے، تاکہ جتنی بھی سیبیشیس سیکریشنز اوپر جمع ہوئی ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ کوئی بھی بلینڈ شیمپو آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتا تھا اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، ہاں، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے روز دھونے سے بال ٹوٹ جاتے ہیں، بال گر جاتے ہیں، تو کیمیکل ہے، کیمیکل تو ہر چیز ہے، صابن میں بھی کیمیکل ہے، پھر ہم ہاتھ سے ہاتھ کیوں دھوتے ہیں؟ بالکل۔ اوکے، وی ہیو اے کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی، میں ظہور بات کر رہا ہوں۔ جی ظہور صاحب، کیا حال چال ہے، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، فیصلہ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آج۔ بہت بہت شکریہ، کریڈٹ گوز ٹو ثاقب اینڈ سبیحاز۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی پوچھئے۔ سوال یہ ہے کہ میم، یہ جو کراچی میں جتنی بھی جو اسکن ڈیزیز ہو رہی ہیں، ان کی مین وجہ کیا پانی ہے، یا یہاں کا کوئی ایٹماسفیئر ہی ایسا ہے کہ جو ہے یہ بیماریاں جو ہے اسکن کی بڑھتی جاتی ہے؟ جسٹ لائک جو یہ آپ کے ریشز ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی میں، یا کوئی فنگس ٹائپ کی کوئی بیماری ہے، یا ایک ایسی اسکن کی بیماری ہوتی ہے جو نارمل، ایک مجھے یاد نہیں آ رہا جسے کہتے ہیں، ٹھیک، وہ ریشز وغیرہ کا، وہ فنگل کا ہی، وہ اسی سلسلے میں بات کر رہی ہوں، آپ سنیے پروگرام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو ایک بیماری ہوتی ہے لچن،
स्किन की आपको नॉलेज होगी इस बारे में। जी मैं अभी वही बता रही थी, आप सुनिए मैं स्पेशली मुझे लिचन के बारे में बताइएगा कि वो उसकी क्या वजह है होने की। किसकी? लिचन। किसकी? रिपीट कीजिएगा। LICHEN। अच्छा, आपको मेरे ख्याल मेडिकल टर्म है ये। कौन सी? मैंने सही से सुना। दोबारा से रिपीट करेंगे जहूर साहब? LICHEN। ओ लाइकन, ठीक है, लाइकन, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया और आपको हम ऑनर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए, अब पहले तो फंगस का हम जवाब दे लें। उसके अंदर यही है कि जैसे मैं बता रही थी कि यही चूंकि आपके पसीना रहता है, प्रॉपर रिमूव नहीं होता, तो ये आपके फंगस आ जाती है, रेड पैचेस, रिंग वर्म वगैरह बन जाता है। फिर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो लगाने की मेडिकेमेंट और खाने की टैबलेट देते हैं जो जरा 2-3 हफ्ते खानी पड़ती है, ठीक है ना, बड़े लग के तब जाके वो होता है अलॉन्ग अगर आपने सफाई रखी। अभी लाइकन की बात करें, लाइकन इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। लाइकन प्लेनस भी है, लाइकन अमाइलॉइडोसिस भी है, लाइकन और भी बहुत सारी तरह के, लेकिन इसके अंदर जो भी चीजें आती हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे इरप्शंस होते हैं स्किन के अकॉर्डिंग टू द नेम और उसके हिसाब से। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात क्या कर हाल रहे है? हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका काफी नाम दिनों जानना के बाद आपको चाहूंगी। देखा है। सॉरी? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूंगी। कहाँ मेरा से? नाम मेजर कलीम है और ये क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी मेजर डॉक्टर साहब, साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी 2-4 हफ्ते से। थोड़ा सा घूमने फिरने गई हुई थी, ये कुछ आउट ऑफ अच्छा टाउन नोटिस थी। किया आपने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस एक क्वेश्चन ये करना था, जी। जो आपने आज मौजू छेड़ा है वही हमारे लिए बहुत मौजू है, क्योंकि हम लोग तो फौजी हैं तो वो वर्दी में होते हैं, जी तो वो पूरा दिन उसी में रहना पड़ता है। जी पसीना भी बहुत आता है, जी तो पसीना जो है वो तो कुछ देर के बाद सूख भी जाता है और फिर पसीना आता है और फिर सूखता है। जी हाँ। तो हम तो जाके फिर शाम में ही नहा सकते हैं, सही कह रहे तो इसके नहाने के अलावा और कोई है कोई ट्रीटमेंट? ठीक है जी, आपको बता देते हैं। मेजर साहब आपको ऑनर जवाब देते हैं, इस मुश्किल मसले का हल बताते हैं। शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि हम लोग तो किसी भी तरह के कपड़े पहन लेते हैं, उनकी वर्दी इतनी मोटी, मतलब ऑब्वियसली और ऊपर से फैब्रिक फिर वो होता है, राउंड बेल्ट ईयर और और सब सब कुछ कुछ, होता है, हाँ। इसके ऊपर उनके बैक पैक्स और कितनी सारी चीजें होती हैं, जूते बंद होते हैं, वो बेचारे Long हर boots पहने तरफ हुए से जो है ना वो पैक हुए हुए होते हैं और कोई भी सीजन हो उनको इसी तरह रहना होता है। हर एक तो बात ये है कि इन लोगों की स्किन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं देखती हूँ, फुट फीट में, ये जो होता है, जो एथलीट्स फुट हम जिसकी बात करते हैं, जो ज्यादातर बंद जूतों में रहते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होता है, और सेम बॉडी पे भी पैचेस नजर आते हैं। अब ये बात इनकी सही है, हवा लगती है, वो पसीना सूखता है, वो फिर आता है, लेकिन इसके अलावा जैसे जब ये सुबह चेंज करके जा रहे होते हैं, उस वक्त आइडियली तरीका ये है कि वो शावर लेके ये वर्दी पहने और उससे पहले वो अच्छी तरह डिओड्रेंट, रोल ऑन और ये सब लगा के फिर उसको पहने, और जैसे ही घर आते हैं इमीडिएटली उसके फौरन बाद आके इनको शावर ही लेना है, क्योंकि बीच में और कोई तरीका है नहीं, और ना ही ये कोई हमारी तरह पर्स में कोई डिओड्रेंट वगैरह कैरी कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो तो फौजी हैं, तो वो इस तरह की कोई चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, उनको मैं ये कहती हूँ कि ऑब्वियसली हम कपड़े तो एक्स्ट्रा लेके नहीं चेंज कर सकते रास्ते में या कहीं और, तो बेहतर ये होता है कि आप रोल ऑन स्प्रेज अपने साथ रखा करें कि आपको, और कोशिश करें कि जूते पहने हुए तो थोड़ी देर उतार दें। नमाज के बाद, जैसे ये हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है कि लोग वजू करने के बाद पैरों को खुश्क नहीं करते। अब पसीना आ रहा है, हर कोई तो एसी के एनवायरनमेंट में नहीं बैठा हुआ ना, अगर वो लोग एसी के बगैर वाले एनवायरनमेंट में है तो पैर को तौलिए से या टिश्यू से खुश्क कर लें, क्योंकि उंगलियों के बीच में जब पानी रहता है तो उधर से अलग फंगस आ जाता है। ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ बहुत पीक पर है, जो कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में इतनी नहीं है। और फिर इसके बाद इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कई लोगों को दूसरों से ज्यादा पसीना आता है, किसी को फेस पे ज्यादा आता है, किसी को फीट हाथों पैरों पे ज्यादा आता है, किसी को बॉडी पे आता है, अकॉर्डिंगली केस टू केस। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। सफाई और जितना रिमूवल है पसीने का अपनी जगह से वो इम्पोर्टेंट होगा, उतना ही आपको फायदा होगा और इतनी आपको ये फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पसीना सबको आता है लेकिन फंगस सबको नहीं होता। फंगस आने के लिए यही वजह है, और इसमें अगर आपको कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे आप डायबिटिक हैं, तो आप में फंगस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके इम्यून सिस्टम कम है, बिल्कुल, अगर इम्यून सिस्टम कम है, अगर आपको फंगस बार बार हो रहा है, बहुत बड़े एरियाज पर हो रहा है, जो खवातीन सारा दिन किचन में कुक करती हैं, आप सोचें वो कहाँ बाहर निकल के पसीना सुखाएंगी और दिन में कपड़े चेंज करेंगी। बात की खवातीन की, तो हमारे जो ये मेल कॉलर है ये नाराज हो जाएंगे। वी हैव अ कॉलर एंड आई थिंक दिस इज काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी काशिफ, सही मैंने आपका नेम कॉल किया है ना? जी, डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना था कि जी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है बार बार हर्पीस की, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? किस तरह की एलर्जी हो जाती है? हर्पीस हो जाता है कहाँ पर? लिप्स पे? नहीं, हर्पीस हो जाता है मेल एरिया में। अच्छा, उधर बार बार आपको हर्पीस होता है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में क्या है। थैंक यू डियर फॉर योर कॉल। देखिए, हर्पीस की
काफी सारी टाइप्स हैं, जोस्टर है तो ये सिम्प्लेक्स है. अब ये जिसकी बात कर रहे हैं ये हर्पीज जेनिटैलिस है जो जेनिटल एरिया में होता है. अब इस एरिया में जब भी कभी हर्पीज आपको रिकरेंट हो रहा हो, चाहे वो ओरली है चाहे वो जेनिटैलिस है, आपको एक दफा एंटीवायरल टैबलेट्स का कोर्स करना जरूरी होता है. एटलीस्ट वो जो उसकी जो भी ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट, आपको वो कोर्स पूरा करना है. टॉपिकल क्रीम्स आती हैं वो लगाना है. ये तो हो गया उसका. लेकिन ये चीजें एक दूसरे से कंटेजियस भी होती, लगती भी हैं. तो अगर आपके वाइफ को या वाइफ के हस्बैंड को, कि दोनों में से किसी को भी है, तो ये फिर एक दूसरे को लगता है और फिर उससे वो बार बार होते चला जाता है, अनलेस अंटिल के दोनों का इलाज एक साथ एक वक्त में हो. तो इसकी भी प्रॉपर हिस्ट्री की जरूरत होती है. तो काशिफ साहब से, हाँ डेफिनेटली, अब क्या है तो वो अभी काशिफ साहब से जो स्किन स्पेशलिस्ट उनको दिखाएं और प्रॉपर एग्जामिनेशन कर लें कि बाकी, क्योंकि बाज़ औक़ात हम सोच रहे हैं कोई भी दाना देख के, अक्सर लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि वो उसको खुद ही से डायग्नोज कर लेते हैं. तो वाकई ये हर्पीज है भी या कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या वाकई ये कुछ और इन्फेक्शन है जो वैसे पीप के दाने वगैरह हो जाते हैं. तो ये पहले देखना एग्जामिनेशन में बहुत की होता है, क्योंकि आप किसी को 10 दिन का 15 दिन का ट्रीटमेंट दें, वो भी ख्याली, या आपको ना पता चल रहा हो, तो वो फिर चीज बहुत खराब हो जाती है. स्पेशली स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पहले बिल्कुल एग्जामिनेशन जरूरी है. आपकी हिस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैसे कब बार बार होता है. फिर आप उसका अगर ट्रीटमेंट करते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स ओरल या अगर इसका जेनिटैलिस, तो वो आपको फिर रिकरेंस नहीं होती. लोगों को बुखार होता है, बीमार होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, अक्सर बच्चों को यहाँ कोल्ड सोर्स बन जाते हैं और वो फिर क्या आपने किस किया बच्चों को या किसी को, तो वो उससे उसको ट्रांसमिट हो गया. तो इसलिए ये चीजें बड़ी फैमिली में आपको देखनी पड़ती हैं कि ऐसा तो नहीं किसी को है. तो ये एग्जामिनेशन कराएं तो फिर इनके मजीद आगे तो थोड़ा सा ये कि बॉदर करना पड़ेगा. आप जिधर से भी, मैंने पता नहीं कि अभी कराची से बात कर रहे थे या कहीं और से, अगर आप कराची में हैं तो आप अपना नाजिया के पास भी आ सकते हैं. एंड लेट्स सी हु इज दिस. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, डू वी हैव अ कॉलर? नो, ड्रॉप हो गई कॉल. तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. एक हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर हम लोग घर में बैठे, मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे दाने निकल आए, तो वो इतना कैजुअली इन चीजों का हम समझते हैं कि बुखार, टाइफॉइड, जॉन्डिस ही बहुत बड़ी बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है. स्किन की बीमारी भी बहुत जरूरी है. बाल गिरना से बाल गिरना नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. भाई क्यों हुआ, कैसा हुआ, प्रॉपर स्लीप नहीं, एग्जैक्टली. और रूट कॉज अगर अपनी जगह ही है और हमने ऊपर से उसको चीजें दे दी तो उसका कोई फायदा नहीं है. और हर पेशेंट को पता भी नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए. कई लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई हमें इनको रोजाना धोना भी चाहिए. कई लोग ये समझते हैं कि जी इनको हमने अगर छोड़ दिया, नहीं धो रहे तो वो ज्यादा सही है. इतने मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो वेरी करता है हर पर्सन भी. सिर्फ सर्दियों में नहीं होती, बालों में गर्मियों में भी बिल्कुल होती है. और एक्जिमा का भी ही किस्सा है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिनको होता है, क्या फर्क होता है एक्जिमा और डैंड्रफ में? अगर एक आम बंदा है तो वो कैसे इसको पता? देखिए आइडियली इसके वैसे क्लासिक फीचर तो हैं, हम लोग जैसे डायग्नोज करते हैं उसके अंदर ये होता है कि जो डैंड्रफ होती है ना, वो वाइटिश की तरफ उसका टिंच जाता है मुंह. ठीक है. और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के येलो चिपके हुए से पैचेस होते हैं कि अगर आप उनको, जैसे डैंड्रफ को हम खुजाते हैं तो वो गिरती है, ठीक है, पाउडर की तरह गिरने लगती है. लेकिन सेबोरिक डर्मेटाइटिस के अगर आप पैचेस को खुजाएंगे ना तो वो ब्लीड करता है, वहां से वो निकलता है स्केल, और वो बड़ा चिपका हुआ सा ग्रीसी सा वो होता है, इसकी प्रेजेंटेशन होती है. सेम सोराइसिस भी ऐसा है, लेकिन सोराइसिस व्हाइट है और चिपका हुआ है. तो इसकी ये सब डायग्नोसिस ज्यादा है, मेल में ज्यादा टेंडेंसी है इसकी. सेबोरिक डर्मेटाइटिस अगर है तो ये एक एक्जिमा की ही वेरिएशन है, एक्जिमा की टाइप है. बचपन से ये लोगों को अक्सरों को होती है. सर में से खुश्की आई, पलकों पे गिरी, बच्चों की टूटी टूटी पलकें, यहाँ छोटे छोटे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, इधर गिरती है तो इधर हो जाता है. तो ये सब ये है. अब ये स्टार्ट तो अमूमन बचपन से होता है, लेकिन आगे जाकर भी आपको कभी भी मैनिफेस्ट हो सकता है. डैंड्रफ भी कोई एज की मोहताज नहीं होती, हो सकता है. और सोराइसिस बिल्कुल पैदाइशी नहीं होता लोगों को, ये डेवलप होता है लेटर ऑन इन द लाइफ. लेकिन कई लोगों को, बच्चों को, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को ये बचपन से भी हो जाता है. तो इसके तो व्हाइट सिल्वरी प्लेक्स होती है, कभी येलो नहीं होती, और चिपकी भी होती है. आप खारिज करते हैं, वो प्लेग हटता है, 2 दिन बाद वापस बन जाता है, क्योंकि वो स्किन का जो रेप्लिकेशन साइकिल है वो है बहुत फास्ट. तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए इसका सोल्यूशन अलग फिर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज थी. इसमें टॉपिकल लोशंस जो जिनका कॉन्सेप्ट हमारे पास आम घरों में नहीं होता, हम समझते तेल लगाया तो ये खुश्की है निकल जाएगी. एक्चुअली तो वो तो तेल ग्रीसी है. तेल भी लगा के 2 दिन तक के लोग शावर ही नहीं लेते, हाँ छोड़ देते हैं. तो वहां से क्या फिर इरिटेशन हो जाती है. आपको उस पैच में आप खुजा रहे हैं, वो चिकना 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 कितना होगा, और बाल ऑलरेडी वहाँ सेबेशियस ग्लैंड्स इतने एक्टिव हैं कि वो और सिक्रीशंस बना रहे हैं. तो इसलिए तेल का वैसे ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे ज्यादा नहीं है. बहुत अगर आपका दिल चाह रहा है ओवरनाइट लगाएं और सुबह शावर. कहते हैं मैक्सिमम भी 2 घंटे आप ऑयलिंग करके रखिए और उसके बाद आप सही, बिल्कुल ऐसी ही बात है. उसमें हाथ का मसाज इंपॉर्टेंट है ऑयल लगाने के. हम समझते हैं कि बाल सिमटे हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो जी रोज उसके ऊपर लगा लिया तो सही हो गया, कर ली, बालों को तो कर सही लिया, हो गया. तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि देखें, अगर जैसे फ्रिजी बाल हैं, बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक सोल्यूशन ये होता है कि आप सीरम लगा लें. क्योंकि मूस,
जेल और तरह के जो स्प्रेज हम लगाते हैं वो सब बाल को डैमेज करते हैं. सीरम इसमें क्या है कि ये कहना चाहिए फैंसीआइड फॉर्म ऑफ ऑयल है जो कि हाँ जैसे